Let's draw all the structure. If I draw the second alkyl, we can make CS3, this we can make, है ना? From which position we removed here? This is 1 degree. This is what? 3 degrees. So what would be the name of this alkyl? You can also represent like this: CS3, CH2, this. Or you can say, also make it like all are same. This is known as tertiary pentyl. Tertiary pentyl. This is common name. Again, not used in IUPAC. What is the IUPAC name of this? From where you have to name the number the alkyl 1, 2, 3. It should be what? 1, 1. 1, 1 dimethyl propyl. Dimethyl propyl. Yes, correct. This is correct. If I take one hydrogen from 2 degree carbon, you will get CS3, CH, this. Now for this there is no common name. कोई common name नहीं है जो याद करने वाला point है. But IUPAC you can make it. From here you have to number 1, 2, 3. It should be what? 1, 2 dimethyl. क्या होगा? Propyl. This is IUPAC. Very simple rule. What you have to apply? From the carbon where hydrogen is removed, just start counting the carbon chain and write the base name and attach the different substituents. One more left क्या? एक और left ना? CH2, CH, CH2, CH3. Again, there is no special name. 1, 2, 3, 4. Special name there, if it is there also, you don't have to bother. You just try to learn iso, neo, secondary, tertiary, normal. That's it. So what is the name of this? 2-methyl butyl. 2-methyl butyl. Simple. Any difficulty? No, sir. ठीक है. तो थोड़ा summarize कर लेते हैं last class का. If there are 4 to 6 carbon, iso used for alkane. 3 to 6 carbon, iso used for alkyl. Which iso is secondary alkyl? बोलो. Neo used for alkane as well as alkyl. If I ask you a question, which iso alkyl is
सेकेंडरी अल्काइल कौन सा था बताइए? हाउ मेनी 1 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon, 4 degree carbon, 1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen, 3 degree hydrogen, types of carbon and types of hydrogen are present in, what is the answer? बताओ बेटा, which isoalkali secondary alkyl? Please check your note. Sir, isopropyl. Isopropyl. Beta, after so much time I got the answer. मतलब you people didn't revise. If I got the answer quickly, then only I will assume आपको आता है पूरा. आपको सब रिवाइज करके बैठे हो. समझ गए? ये isooctane है. Isooctane generally iso used for IUPAC है ना? ISO is used for what? बोलो. ISO and NEO are used for IUPAC. बट टिल 6 मेंबर तक ही हम यूज कर सकते हैं. अगर 7 और 8 में आइसो आता है वो कॉमन नेम होगा. तो जैसे आइसोऑक्टेन का कॉमन नेम का शॉर्ट फॉर्म CN बनाया था हमने. एंड दिस इज नॉट यूज्ड इन व्हाट IUPAC. Try to learn the structure also. Even I will tell you to draw the bond line. This बनाइए. देखिए चलो इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं. IUPAC नेम क्या होगा? We didn't learn the rule of alkane, but since we learned the alkyl, can we try to name this also? From left or right जाएंगे. ये लिख देता हूँ मैं. Don't bother about the IUPAC name. 2,2,4 trimethyl pentane. इसका common name isooctane है. IUPAC name is what? 2,2,4 trimethyl pentane, and common name is not used in IUPAC because iso is used for till 6 carbon only. So can you continue with me? What is number of 1 degree carbon? How many 1 degree carbon is there? 5. 5. Right? Number of 2 degree carbon? 1. 1. Number of 3 degree carbon? 1. 1. Number of 4 degree carbon? 1. 1. 1. अब number of 1 degree hydrogen I don't have to mention. You can directly write by multiplying what? 3. 3. Same for 3 degree. Same for 4 degree. Hydrogen is not possible. So number of 1 degree hydrogen is what? 15. 15. 2, 1. Now tell me total number of different carbon. Please don't make it wrong.
टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन बताओ। 5. 5, वेरी गुड। 2 1 डिग्री होंगे, एक 2 डिग्री होगा, एक 3 डिग्री होगा, एक 4 डिग्री होगा। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन क्या होगा? 2 1 डिग्री होंगे, एक 2 डिग्री होंगे। कोई डाउट? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. अच्छा बताओ, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अल्काइल कितने पॉसिबल होंगे? फोर। 4. और टोटल नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स कितने पॉसिबल होंगे? 4. 4। Done. This question will be as a homework. Write it. इसका हो जाता है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Now we'll collect all the examples of isopropyl, isobutyl, isopentyl, and accordingly we'll try to name it. What is this? Isopropyl. What is this? Isobutyl. Isopentyl, है ना? Even you can write isohexyl also. Can you check the pattern? Hello? Yes, sir. So I will write how to basically check the pattern and try to write the statement for naming of isoalkyl. For naming as isoalkyl, you have to observe what 1-methyl group should be present at second last carbon or 2-methyl groups present at the end of unbranched chain. Try to observe. From here to here, it is what? Unbranched. कोई ब्रांचिंग है क्या वहां पे? लास्ट में ब्रांचिंग आई है? नहीं। लास्ट में ब्रांचिंग आई तो कितने मिथाइल आए हैं? 2 मिथाइल आए हैं। तो क्या लिखा है? 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अनब्रांच चेन और 1 मिथाइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट द सेकंड लास्ट। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं इसको उठा लूं, यहां से काउंटिंग करूं, व्हाट इज द सेकंड लास्ट पोजीशन? दिस वन। सेकंड लास्ट पे क्या है? Yes. मिथाइल प्रेजेंट है। तो in any way you can find out the isoalkyl. क्लियर है यहाँ तक? Yes. आसान है, आसान है। इसी में मार्क कर Sir. देते। हाँ बोलो। सर जो लास्ट क्वेश्चन था ना, अभी वाला। उसमें हाँ सर अच्छा मैं स्ट्रक्चर नहीं दिया, सॉरी। हाँ सर, और उसके पहले वाला भी जो है ना, हाँ, उसमें जो डिफरेंट अल्काइल जो पॉसिबल होते हैं वो हम लोग देखते
कि कितने डिफरेंट कार्बन है, राइट? कार्बन नहीं, सो हाइड्रोजन। हियर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट. कार्बन नहीं बेटा, Okay. बिकॉज इफ यू वांट टू फॉर्म अल्काइल यू हैव टू रिमूव हाइड्रोजन, एंड क्वाटर्नरी कार्बन पे Yes. हाइड्रोजन होते नहीं है ना? सो Okay, आई sir. आई डिडंट गिव यू द स्ट्रक्चर बेटा। टेक दिस स्ट्रक्चर, लिख लीजिए स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये छोटा सा होमवर्क कर लेना प्रैक्टिस के लिए यार, कुछ खास नहीं। तो आइसो का नेमिंग समझ में आया? आइसो का पार्ट समझ में आ गया? हेलो? Yes, sir. सेम फॉर सेम थिंग यू कैन डू फॉर व्हाट? अल्केन के लिए भी CH3 देखना। सर हाँ बोलो। सर एक बार वो स्ट्रक्चर दिखाइए। हाँ बेटा, in the if you in between the class also, if you feel you have time to draw the structure, अपना काम खत्म कर लो क्लास में। डन सर। देखिए आइसोप्रोपाइल, इसका नाम क्या है? आइसो ब्यूटेन। इसका नाम क्या है बताओ? पेंटेन का मतलब टोटल नंबर ऑफ Isopentane. कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। इवन यू कैन टेक इट रूल्स सिमिलर टू अबव। इसका नाम क्या होगा? आइसो। So hexane. सो हेक्सेन। Here how many carbon is used? 4 to 6. फोटोस। The rules will be similar. तो 3 कार्बन का अल्केन का कभी आइसो नहीं बनने वाला। डन? डन सबको? बढ़े आगे? यस। ओके, ये हो गया हमारा आइसो का। ऑल आर आइसो क्या है ये? अल्केन। वी आर राइटिंग ऑल द एग्जांपल्स, सो एग्जांपल्स ही सब लिख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे CH3 दिस, इसको कहते हैं नियोपेंटाइल। CH3, and I will not write the statement for this. How to observe? You can easily write it. You just have to do small changes. क्या करनी पड़ेगी? ऊपर क्या मेंशन है? यहाँ पे क्या लिखा है? 1 मिथाइल और क्या लिखा है? 2 मिथाइल। वहां पे क्या लाना पड़ेगा बताइए? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल और ऊपर 1 मिथाइल, 2 मिथाइल। क्लियर है? मतलब ये पूरा उठा के हम लोग वहां पे कॉपी कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, आप लिखिएगा। आप एक बार लिखिए इसको, यहाँ पे रख सकते हैं। सर बिल्कुल कॉपी पेस्ट। सर नियोपेंटाइल नियो और हेक्साइल पे और एक नियोहेक्साइल का सेम CH2। स्टेप. नहीं नहीं, अरे हमारी गलती हम आप नहीं कर सकते। बताओ, है ना? यहाँ पे क्या होगा? 2 मिथाइल, यहाँ पे क्या लिखिएगा? 2 मिथाइल ग्रुप्स, और यहाँ पे क्या लिखिएगा? 3 मिथाइल। डन? आसान है ना? एट द एंड ऑफ हाँ सर. हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर देयर? 3 मिथाइल। और सेकंड लास्ट कार्बन पे कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल। आइदर वे यू कैन डिसाइड क्या होने वाला है। ठीक। सिमिलरली इफ आई टेक अल्केन वाला पार्ट, इसका नाम क्या होगा? नियोपेंटेन। इसका नाम क्या होगा? नियोहेक्सेन. हेक्सेन। ये सब दोनों क्या होगा? नियो अल्केन। एक दो ही है जिसको यूज करना है, उसमें गलतियां क्यों करना?
for naming of secondary alkyl, naming as secondary alkyl. Observe क्या ऑब्जर्व करनी है? R CH CH3 R क्या होना चाहिए? R will be, बताया था मैंने, straight chain alkyl. you know very well, very good. स्ट्रेट चेन अल्काइल, वो ब्रांचिंग उसमें नहीं हो सकती। और R इंपॉर्टेंट है, मिथाइल नहीं हो सकता। अगर R मिथाइल हो जाएगा तो कौन सा अल्केन बन जाएगा, कौन सा अल्काइल बन जाएगा? क्विकली बोलो। आइसोप्रोपाइल है ना। R कांट बी व्हाट, मिथाइल। R मिथाइल नहीं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके CH3 CH2 CH CH3, क्या नाम होगा इसका? सेक ब्यूटाइल। CH3 CH2 दिस सेक पेंटाइल। फॉर्मेट वही रहने वाला है जो ऊपर फॉर्मेट है, दिस। It is isopropyl. It is not उसको ऐसा नहीं लिखते हैं। क्या नहीं है ये आइसोप्रोपाइल है। क्या नहीं है? सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं है। ऑब्जर्व करेंगे तो सेम आएगा, इसलिए आर को मिथाइल लिखा हमने। आर इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल सब हो सकते हैं। अच्छा बताओ ये कौन सा, इसका नाम बताना। कैन आई कॉल इट, इज इट सेकेंडरी पेंटाइल? बोलो। No. इट इज नॉट सेकेंडरी पेंटाइल। व्हाई? बिकॉज सेकेंडरी के लिए मिथाइल होना जरूरी है। सर बोलो। सर ये सेकेंडरी वाला समझा नहीं कुछ। ये आप हाँ फॉर्मेट देख रहे हैं? सर, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। ये फॉर्मेट देख रहे हैं आप? हाँ यस सर। सर। ये देख रहे हैं फॉर्मेट? मतलब ऐसा दिखेगा तभी तो सेकेंडरी अल्काइल बोल पाओगे। आर कोई भी स्ट्रेट चेन हो सकता है एक्सेप्ट व्हाट, मिथाइल। तो इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, बट दूसरे एंड में क्या होना चाहिए बताओ? मिथाइल। 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 पर यहाँ पे चलो एक तो स्ट्रेट चेन है, पर मिथाइल है क्या? नो। तो बस नहीं नहीं। होगा, सिंपल। बिल्कुल इसी का कॉपी पेस्ट होगा।
tertiary alkyl. देखिए R will be straight chain alkyl and R can be methyl also, दोनों हो सकते हैं. एग्जाम्पल बिल्कुल इसी फॉर्मेट का होना चाहिए. Now you can try to make it. You can try to make it. देखिए R को मैं CH3 ले सकता हूँ और रिमेनिंग तो 2 CH3 होने ही चाहिए. इसका नाम क्या होगा? How many carbon is there? 4 carbon. What is the name of this? Tertiary butyl. Tertiary butyl. Again, R can be any straight chain alkyl. R can be methyl also. देखो ये क्या होगा बताओ? टर्शरी पेंटाइल. बट क्या ये भी टर्शरी पेंटाइल है? टर्शरी कार्बन जरूर है पर टर्शरी पेंटाइल है क्या? No, sir. बेटा जो डाउट हुआ जिनको समझ में आ गया कंपैरिजन. Yes, sir. ठीक है. दिस इज नॉट हाँ sir. टर्शरी पेंटाइल बिकॉज 2 मिथाइल होना जरूरी है. 2 मिथाइल नहीं होगा तो टर्शरी पेंटाइल उसको कहेंगे ही नहीं. और टर्शरी ब्यूटाइल is not neobutyl because neo starts with how many carbon? 5. 5 से स्टार्ट ही होता है. इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है टोटल. आसान है. हेलो. Yes sir. Yes. सारे एग्जांपल्स हो गए. हमने सारे अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल सब कर लिए. व्हाट इज नॉर्मल अल्काइल? एन अल्काइल इज व्हाट? स्ट्रेट chain alkyl. Like इसको क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल And है ना. CH3 CH2 CH2 तो क्या बोलेंगे? N-butyl. एन ब्यूटाइल. सेकेंडरी एंड टर्शियरी कांट बी यूज्ड इन व्हाट? फिर से रिपीट कर रहे हैं. सेकेंडरी एंड टर्शियरी कांट बी यूज्ड इन IUPAC. याद है? याद रहेगा. हाँ sir. सेकेंडरी एंड टर्शियरी कांट बी यूज्ड इन IUPAC. कंप्लीट करिए. डन सबका. तो आपको नेमिंग ऑफ अल्काइल समझ में आ गया. नेमिंग ऑफ बोलो. नेमिंग ऑफ अल्काइल समझ में आ गया. कॉमन नेम समझ में आ गया. Alkyl. और IUPAC भी समझ में आ गया. नेक्स्ट विल मूव टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. empirical formula. And structural formula.
One by one we'll discuss. Molecular formula simply represents what? A molecule. इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकता. अगर रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूल को, इट मींस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, वो आपको समझ में आएगी. दैट इज molecular formula represent exact number of atoms of each element in a molecule. Empirical formula is simplest formula. Empirical formula represents the whole number ratio the simplest ratio represents simplest whole number ratio of atoms each element in a molecule. ये सारे हमने लिख दिया. एग्जाम्पल कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है बताओ? C6H12O6. 6,6H12O6. Can you find out molecular weight of this? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बताओ ग्लूकोज का? क्या करोगे? रेशियो ले लोगे. 612 6 का रेशियो क्या होगा? CH2O 6 से रेशियो लोगे ना. 6 तो मॉलिक्यूलर वेट आया 6 into 12 12 into 1 6 into 16 you will get this. क्लियर है? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Now, empirical formula weight. Empirical formula weight is calculated in the same way as molecular weight. यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? मतलब यहाँ पे 1 कार्बन है ना, कितने आ जाएंगे? 30. कोई डाउट? No, sir. अच्छा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि C6H12O6 बन जाए? एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से. इफ आई मल्टीप्लाई CH2O को C6H6O बन जाए, C6H12O6 बन जाए, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ N? 6. 6. You can also calculate N can be written as molecular weight upon empirical formula weight. तो इस केस में देखिए कितना है? 180 upon 30 कितनी आ रही है? 6. कोई डाउट? No, sir. No, sir. Empirical formula weight is new for you. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. What is EFW? But it is calculated in same way as molecular weight. Empirical formula weight calculated in same way as molecular weight. So what is the relation between empirical formula and molecular formula? What we can write? N into empirical formula equal to molecular formula, where N is what? Molecular weight upon Empirical formula weight. empirical formula Empirical formula. weight.
एक और रिलेशन लिख देता हूं यहाँ पे, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, सबका नहीं, सिर्फ गैस का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन 2। कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, बट अगर कुछ मिलता है तो याद कर लेंगे, क्या बुरा है इसमें। डन। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, क्वेश्चन देखो दे रहा हूँ। फाइंड molecular formula, empirical formula, molecular weight, empirical formula weight, find empirical formula, molecular weight, empirical formula weight and N for ethane। निकाल सकते हैं। where N is what, मैं फिर से लिख देता हूँ, empirical formula weight। Did I send you the link for video lectures? No, sir. I will, No, sir. I will send you the link in classroom or you can check from there। कर लिया? कर लेते हैं बेटा फटाफट। इथेन क्या होता है? C2H6। What is C2H6? Molecular formula। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? Formula. CH3। CH3. मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 30, 28, क्या होगा? 20, 20 कैसे होगा? 24 प्लस 6 28, 30. 30। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट क्या होगा? 15, 15, 15। और एन क्या होगा? 2, बोलो। 2. 2, आसान है। हाँ, sir. नाउ yes, नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज composition of a molecule using molecular formula and empirical formula। पहले what is percentage composition should understand। Percentage composition is, it is the percent by mass of each element in a compound। Percent by mass of each element in a compound। Just take example ले लेते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था हमने, C6H12O6। क्या लिखा था? 6 into 12, 12 into 1 180. and 6 into 16। टोटल क्या था? 180। But if I ask you, in 180, what is the mass of carbon? 6 into 12,
72. What is this? Mass of hydrogen, है ना? And what is this? Mass of Mass of Mass of oxygen. oxygen. So percentage carbon will be 6 into 12 upon total mass, that is 180 into 100. Percentage hydrogen will be 12 into 1 upon 180 into 100. Percentage oxygen. Acha, if you calculate the percentage of two elements and there are only one element left, it should be, you can write it 6 into 16 upon 180 into 100, but you can also write what? 100 100 minus the percentage of carbon hydrogen. percentage of carbon plus percentage of hydrogen. Calculate it, कितना आ रहा है देखो, ये आ जाएगा 40%, ये आ जाएगा 6.66% 6.67. और ये 53.34%. अब 6.67 कर लो या 53.33 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है. अप्रोक्सीमेट लिखा मैंने, 53.33333 आएगा, 6.6666 आएगा. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से मैं, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी क्वेश्चन. कैलकुलेट परसेंटेज composition of water. So what is the formula of water? H2O. H2O. निकालिए. सब लिख रहे हो ना साथ में बेटा? हाँ, सब लिख पा रहे हो सब साथ में? साथ में लिख, कोई Yes, छूटता sir. नहीं है किसी का? छूट नहीं रहा किसी No, का? sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एक और क्वेश्चन देता हूँ. परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला. हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज किया ना? हेलो, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज किया ना? Yes. पर Yes, आप sir. निकालना एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, एंड यू विल रियलाइज कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से भी रिजल्ट सेम ही आती है. क्यों ऐसा? लेकिन 6 का फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आएगा ना. जब एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? 30 लिखोगे. यहाँ पे क्या लिखोगे? सिर्फ 12 लिखोगे, 1. तो रिजल्ट सेम ही आएगी ना. ट्राई टू अप्लाई इट. हाँ. वन मोर थिंग, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होगा? H2O. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर भी क्या होगा? H2O. H2O. Sir, H2O का percentage composition find करो. हाँ, बताओ कितना आ रहा है? Sir, hydrogen 11.11% और oxygen 88.89. हाँ, आई थिंक हाँ सही है. सर, 11 same. पॉइंट, हाँ सही है. Yes, sir. देखो हम थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी सीख ले रहे हैं बेटा. दिशा सुन रहे हो? दिशा, मोल कॉन्सेप्ट भी सीख ले रहे हैं और थोड़ा आईपीएस भी हाँ चलिए सर. साथ साथ. हाँ.
आगे बढ़ते हैं बेटा, और एम्पिरिकल फॉर्मूला से भी निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना? आया सबको सेम? Yes. ओके, Yes. लेट्स मूव टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है बता, देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कैसे कनेक्टेड होगा वो बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल नॉट टेल यू एनीथिंग। इट इज द, और यू कैन मेंशन लाइक दिस, इट इज द लिंकिंग ऑफ, एक ही बात है, डिफरेंट आइटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है? और कौन कौन से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पहला होता है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ESF, और इसको कभी कभी कहते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। सेकेंड इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब कुछ कुछ छोटा मोटा रूल अप्लाई करके हम इसको शॉर्टन कर दिया बस। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको अच्छे से, यू डिड अ प्रैक्टिस आल्सो। तो स्केलेटल फॉर्मूला भी कहते हैं। वन बाय वन देख रहे हैं। एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? एक्सपैंडेड नाम लिखा हुआ है, इन दिस क्या लिखेंगे? ऑल It will बॉन्ड्स आर, be an हाँ, expanded इन दिस form. ऑल बॉन्ड्स आर शोन, सब बॉन्ड दिखा देंगे। एक्सपैंड का मतलब ही क्या है? सभी बॉन्ड को दिखा देंगे। In Lewis structure of molecule, covalent bonds are represented by a dash, सिंगल बॉन्ड को दिखाते हैं सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से दिखा देते हैं। लोन पर समझाया था हमने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट फॉर्म का लिखा था हमने LP, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on heteroatom. What is heteroatom? Other than carbon and hydrogen? Other than carbon and hydrogen, that is nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, halogen, may or may not be shown. दिखा भी चाहते हैं दिखा दीजिए, नहीं भी दिखाएंगे चलेगा।
Draw ESF of following molecule. CH4, ethane, propane, and butane. Ethene, प्रोपीन, सब ट्राई करिए। वन ब्यूटेन, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड। मैंने बना दिया आपको सबका। सर 1 ब्यूटेन और n ब्यूटेन सेम है ना? वन ब्यूटीन है बेटा, ई है, ई सॉरी। ई है बेटा यहाँ। देखिए, वन बाय वन कर लेते हैं सारे एग्जांपल। एक बार आप मैच करा लीजिए अपने आंसर से। सबसे पहला, फर्स्ट विल बी एक्सपैंड करनी है। कार्बन विल फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 Four. बॉन्ड 4 दिखा दिया मैंने। इथेन, सारे बॉन्ड आता है आपको, बस थोड़ा जस्ट रिवीजन के फॉर्मेट में है। प्रोपेन, आपको तो बॉन्ड लाइन बनाना भी आ गया है, जस्ट आपके नोटबुक के लिए दिस। नेक्स्ट डी में एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन क्या होगा? स्ट्रेट चेन होगा। एन का मतलब क्या होता है? Normal. नॉर्मल। पर नॉर्मल का मतलब क्या होता है? Straight. Straight chain. स्ट्रेट चेन। तो सिंपली टोटल कितने काम बनाने हैं? 4, और सब पे हाइड्रोजन लगा दो। जो कितना बोरिंग काम है। ये आपको इसलिए करने दिया है कि आपको समझ में आए कि एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कितना बोरिंग काम है। इथीन बनाने के लिए क्या है? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। दिस प्रोपीन, there should be 3 carbon, but you have to mention double bond. This next आपका F हो गया। फिर G, G में क्या करनी है? ब्यूटीन बनानी है। It is just similar to propene. How many carbon you have to make first? 4, डबल बॉन्ड बना दिया। कार्बन सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड को हमें हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। This H, इथेनॉल। व्हाट इज इथेनॉल? 2 कार्बन, नाउ विल टेल यू ऑक्सीजन पे कितने लोन पे रहेंगे। 2 बॉन्ड बना चुका है।
ऑक्शन में कितने लोन पेयर रहेंगे? 2। पढ़ा है बेटा? हाँ सर। Yes. So if you want to put lone pair or if you don't want to put lone pair, it's your choice. अगर मान लो इस पे लोन पेयर नहीं दिखाया मैंने, तो ओ पे लोन पेयर है क्या? हाँ है, ऑब्वियस है। नहीं दिखाया तब भी है। अगर 2 बॉन्ड है मतलब 2 लोन पेयर होंगे कंफर्म। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एसिटिक एसिड, if oxygen has 2 bond, it means it has 2 lone pair. सर। हाँ बोलो। सर जब हम लोग OH ड्रॉ करते हैं तो O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो दिखाना कंपल्सरी है? All bonds are shown बेटा। डायरेक्टली OH है सर? नहीं, OH लिखेगा ना, कंडेंस में कर देंगे, बट एक्सपैंडेड में क्या करेंगे? ऑल बॉन्ड दिखा देंगे। एक्सपैंडेड में ऑल बॉन्ड्स दिखा देंगे। इफ ऑक्सीजन एटम इज हैविंग 2 bonds, it means it must have what? क्या लिखने वाले हैं? 2 lone pairs. 2 lone pair। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है। नहीं लिखा मतलब ऑब्वियस है उसके पास। इफ यू डोंट राइट इट, इट इज ऑब्वियस इट इज हैविंग 2 lone pair। इफ नाइट्रोजन एटम, क्या लिखने वाले हैं बताइए? 3 bonds, कितने लोन पेयर? 1। ये ऑब्वियस है। इफ क्लोरीन एटम, बताइए, if chlorine atom has 1 bond, 1 bond. it has 3 lone. obvious, obvious है। If you don't want to show the lone pair, it's okay, doesn't matter, both are correct। both are correct। clear? done सब लोग? यस सर। नेक्स्ट मूव करते हैं। condensed structural formula। the structural formula is further shortened by removing some or all the bonds डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? बॉन्ड। Bond. presenting covalent bond। subscripts are used for repeating atoms or groups। some groups which are repeated in a proper manner are kept in brackets और parenthesis कहते हैं। तो ब्रैकेट्स में स्मॉल ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल एक थोड़ा सा करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इफ आई हैव एन ब्यूटेन,
कुछ नहीं है, बहुत सब हाईफाई चीजें नहीं है, बस वन टाइम जानना है, एक बार जान गए काम खत्म हो गया इसका। तो एन ब्यूटेन का अगर एक्सपैंडेड लिखूं मैं, सब पे बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि हम फास्ट चल रहे हैं, आप लिख नहीं पा रहे हैं, यू कैन अवॉइड, यू कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड यू कैन लीव इट, यू कैन लेटर ऑन राइट द फ्रॉम द नोट्स, अगर आपको लगता है कि फास्ट चल रहा है तो। बट डोंट ब्लेम लेटर कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे थे, मैं आपका समझा नहीं कुछ, मैं लिखते रह गया। नहीं, लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। बट आई एम टीचिंग वेरी स्लो, you will realize if you sit in the other batches of chemistry. बट स्टिल अगर आपको लगता है कि फास्ट है, जस्ट पॉज, समझो, उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, बाद में फिलअप कर लीजिए, सिंपल सा है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन CH बॉन्ड आई जस्ट रिमूव द CH बॉन्ड, आई केप्ट ओनली CC बॉन्ड। तो लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। इवन यू कैन राइट दिस ऑल्सो, डिपेंड ऑन आप कैसे लिखते हैं, CH3। ये भी चलेगा, और जो मैंने अभी जस्ट पहले लिखा था वो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कॉपी करके मैं फास्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो हो सकता है आप उसमें आपको लगता हो कि आप छूट जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, सबस्क्रिप्ट है। क्यों सबस्क्रिप्ट यूज किया मैंने, बिकॉज हाइड्रोजन 3 बार उसी कार्बन से अटैच्ड है, तो उसको रिपीटेशन के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, सबस्क्रिप्ट यूज कर लिया। आसान है। हेलो, Yes, sir. नाउ वी कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग, वी विल रिमूव द CC बॉन्ड ऑल्सो। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, CH3 CH2 CH2 CH3। डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट तो मैंने कुछ लिख दिया, सब एक साथ लिख दिया मैंने, गैप नहीं है। और भी कर सकते हैं, कैन आई रिपीट CH2 ऑल्सो। CH2 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। ये सभी क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला। किसी भी फॉर्म में दिया रहेगा आपको, आप बस गलत मत करना। सर सबस्क्रिप्ट क्या था एक बार बताएं। सबस्क्रिप्ट आर यूज फॉर रिपीटिंग एटम्स और ग्रुप्स। जो एटम रिपीट हो रही है, जैसे इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तीनों उसी कार्बन पर अटैच्ड है, तो उसको लिखने के लिए मैंने एक ही हाइड्रोजन लिखा और 3 लिख दिया, ओके सर। है ना, आसान था। ये बस लिख रहे हैं, सीखने का तरीका आपको जानने को मिल रहा है। कंप्लीट करिए। नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Bonds are replaced with lines where the carbon atoms बता चुके हैं बॉन्ड लाइन आपको, बस एक बार सिस्टमैटिक फॉर्म में मेंशन कर दे रहे हैं। Bonds are replaced with lines where the carbon atoms are present at the both ends and at the meeting point of two lines. कार्बन और हाइड्रोजन को शो करते हैं क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन, नॉट सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तो वो भी नहीं शो करते।
कार्बन एंड हाइड्रोजन, सब लोग रिवाइज करके बैठे थे आज क्लास में? हाँ सर। अभी हाँ किसने कहा? हेलो, सर, हेलो, नहीं कोई नहीं, जस्ट नाम जाना है। किसने कहा? हेलो, सर दिशा। दिशा, दिशा कहा? दिशा ने कहा? बेटा आपका कनेक्टिविटी इशू है क्या? आपने फोन से ज्वाइन किया है? बेटा कुड यू प्लीज रिजॉल्व इट? थोड़ा कोशिश करो घर में बात करके। अगर इंटरनेट का इशू है तो ब्रॉडबैंड लगा लीजिए, बिकॉज आप मेहनत कर रहे हैं। समटाइम्स मे बी कैन गेट डिस्कनेक्टेड। विलेज। अच्छा घर, अच्छा विलेज में है क्या? ओके ओके ओके, तो वहाँ मुश्किल है बेटा, वहाँ मुश्किल है, मुश्किल है। चलो कोशिश करना, और थोड़ा ऐसे जगह पे बैठो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा आया होगा, नेटवर्क अच्छा रहता होगा। हाँ सर। तो वो लिखा है हाइड्रोजन आइटम्स आर इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है आप लोग बताइए? इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लिटरेरी मीनिंग क्या होती है? ऑब्वियसली शो। ऑब्वियस, हाँ, मतलब वो ऑलरेडी है, ऑब्वियस है, उसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब उसी एन ब्यूटेन को जो हमने ऊपर लिखा था, एन ब्यूटेन को एन ब्यूटेन को अगर मैं बॉन्ड लाइन लिखने की कोशिश करूं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, हो गया। कार्बन कार्बन कहाँ कहाँ कार्बन है? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, दो लाइन मीट कर रही है उस पॉइंट। इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3। वन कार्बन एंड, बोलो, थ्री हाइड्रोजन। थ्री इस हाइड्रोजन, पे कितने? इस पे वन कार्बन एंड टू टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हेयर वन थ्री कार्बन एंड हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन। हेयर वन कार्बन एंड टू टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो जस्ट यू डोंट हैव टू राइट डॉट आल्सो, जस्ट राइट सिंपल। कितना प्यार से लाइन बन गया। ये हमें प्रैक्टिस में रखना है। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब आप ना क्या करना, मैं सिंपल फॉर्मेट दे रहा हूँ, ब्यूटेन बना के दे रहा हूँ। ब्यूटेन आपको पता है ऑलरेडी, इसी मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। बिल्कुल नया तरह का एक्सरसाइज है, ये मैंने ले लिया। इसका अगर आप चाहते हो तो ये भी बना लो, जो हमने बना के रखा है, कंडेंस बना के रख लेते हैं। और क्या बना के रखा है? बॉन्ड लाइन, सब बना के रखा है सब बना के, है ना? दिस, दिस ऑल आर गिवन फॉर ब्यूटेन। सभी क्या है? ब्यूटेन है। सबका फॉर्मूला क्या है? C4H10। काउंट कर लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, लिखा
Now what I'm doing, I'm marking the carbon A, B, C और D. हर एक कार्बन को अलग अलग मार्क कर दिया. आई एम ट्राइंग टू रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम. देखिएगा, 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर रहे हैं. कहां से कर रहे हैं वो हम बता देते हैं आपको. जस्ट ट्राई टू मेक डिफरेंट बॉन्ड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स. ठीक है, हमने फर्स्ट रिमूव किया ए और बी से. ए और बी से रिमूव कर दिया बेटा. बताइए, या सबको मार्क कर लेते हैं पहले, ए और बी से. बी और सी से. ए और सी से. ए और डी से. बी सी, ए बी और सी डी विल गिव सेम रिजल्ट. देखना, बिल्कुल नया तरह का एक्सरसाइज है. आपसे बेसिकली काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं. 2 हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया. कहां से रिमूव किया बताओ? ए से किया, बी से किया. कितने हाइड्रोजन कम हो गए? 2. तो we just write after removing this. लिख दिया हमने. अच्छा, लेफ्ट वाला कार्बन पे कितने बॉन्ड्स हैं अभी? अभी कितने बॉन्ड है लेफ्ट वाले कार्बन पे और इस कार्बन पे? सिंगल बॉन्ड. Single. बेटा हाउ मेनी बॉन्ड्स? बेटा हाउ मेनी बॉन्ड्स? 3. 3. 3 बॉन्ड्स. 3 बॉन्ड्स है ना? हाँ सर. 3 बॉन्ड्स हैं दोनों Yes. के पास. 3 बॉन्ड्स हैं. अच्छा, दोनों अगर आपस में बॉन्ड बना ले तो दोनों के पास 4-4 बॉन्ड होंगे क्या? Yes. हाँ. ओके. तो जो बॉन्ड लाइन बनेगा, बॉन्ड लाइन कैसा बनेगा? ऐसा. Yes, sir. एनी डाउट? बोलो. No, No, sir. Can you do the same thing for the different positions and try to make all the possible structures as a homework? yes sir. Yes, कर sir. लेंगे, कोई इशू नहीं है. No. You have to make word first. क्या बनाइए? फर्स्ट ऐसा बनाइए, ठीक है ना, और फिर बॉन्ड लाइन बनाइए. तो आई नीड CSF एंड BSF बोथ. बना लेंगे सब लोग? Yes, sir. CSF एंड BSF दोनों बना लेंगे. वेरी गुड. ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा. सर. हाँ बोलो. सर बी और डी का भी बना सकते हैं ना? बी और, हाँ, डी. if I talk about A or C or B or D, it will give same result. Symmetrical position है ना. A और C बोलिए या B और C बोलिए, बात बराबर है. A और B बोलिए, C और D बोलिए, बात बराबर है ना. ना अब देखो, एक और काम देता हूँ, काम खत्म नहीं हुई. बिल्कुल ये ड्रॉ करना सीख रहे हैं आप, यूज टू हो रहे हैं. I have taken this molecule again. CH2, CH, CH2, CH3. इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? क्योंकि मैंने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए. क्लियर है? Routine. अगेन आई विल मार्क बेटा. हाँ, अगेन आई विल मार्क बेटा. बहुत प्यारा क्लास चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नो. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. नाउ सेम थिंग जो हमने ऊपर किया था, अगेन विल डू द सेम थिंग. ऑनलाइन का बेटा सबसे प्लस पॉइंट बताऊं, यही मेरे पास है टूल. अदरवाइज ऑनलाइन में कुछ भी फायदेमंद चीज नहीं है. ठीक है, फिर से वही चीज कर रहे हैं. अगेन यू विल गेट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ट्राई टू ड्रॉ ऑल द पॉसिबिलिटीज. कर पाएंगे? हाँ सर. और सेकंड वाले लेवल पे ना बॉन्ड लाइन ही बनाना. डोंट ट्राई टू मेक व्हाट, वो कंडेंस वाला. अगर डिफिकल्टी होती है तो ही आप कंडेंस वाला बना के फिर बॉन्ड लाइन बनाना. अदरवाइज सबका क्या फॉर्म करोगे?
Bond. बॉन्ड लाइन, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगी, है ना? सो ट्राई टू मेक ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. ड्रॉ ESF. अब CSF के देखो, CSF में ना बहुत सारे ऑप्शन है ड्रॉ करने के लिए. ये भी CSF है, ये भी CSF है, ये भी CSF है, ये भी CSF है. ट्राई टू यूज दिस CSF, कोई भी ऊपर वाला दोनों में से कोई. कार्बन कार्बन दिखा दो. इवन दिस CSF इज ऑल्सो गुड. इस पे क्वेश्चन टफ बन जाता है. इन दिस रिप्रेजेंटेशन ना क्वेश्चन टफ बन जाता है. तो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस टू. ड्रॉ ESF, CSF एंड BSF for following molecule. फिर से क्वेश्चन पर काफी दे सकते हैं इसमें, आप खुद से 50-60 क्वेश्चन दे सकते हो. जो हमने लेकिन एग्जांपल पढ़ा है मैं वही बनवा रहा हूँ. एन पेंटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नियोहेक्सेन, एसिटिक एसिड, इथेनॉल, फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH, एसिटिक एसिड का CH3COH, इथेनॉल का CH3CH2. ये भी आपकी होमवर्क रहेगी. Draw CSF and BSF for the following. सिर्फ क्लास खत्म हुआ, नोट्स अपडेट हुआ, नोट्स को चेक कर लिया, कुछ छोटा तो सब पूछ लिया सर से. तीनों सब्जेक्ट में. आई एम नॉट ओनली बॉदर अबाउट योर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री से सिर्फ मार्क्स नहीं आते. केमिस्ट्री में अगर फुल ले आओ तो फिजिक्स मार्क्स लाने पड़ेंगे और बायोलॉजी लाने पड़ेंगे. प्रोपेन नाइट्राइल और इथाइल साइनाइड. क्लियर सबको यहाँ तक? ये सारे एग्जाम्पल आप एज अ होमवर्क करना. ये भी होमवर्क है.
और ये भी आपको कंप्लीट करनी है ऐसा। डन सबको? हेलो, Yes, sir. चल थैंक्स बेटा, यहाँ तक रखते हैं। रिवाइज करिएगा सब कुछ, कंप्लीट करिए बड़े प्यार से अपने नोटबुक में, और एक नोटबुक में एक थोड़ा ढंग से साफ सुथरा लिखने की कोशिश करिए जो आपको हेल्प करेगा ये नोट्स। थैंक्स बेटा, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट। सर आप वीडियो वाली लिंक हम लोग को गूगल क्लासरूम में भेजेंगे भेज देंगे बेटा, भेज देंगे लिंक। हाँ हाँ।